السلام علیکم سامعین، لیجیے پیش خدمت ہے مقدر کا پارٹ 22۔ میرا نام مقدر ہے۔ میں جس انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہوں اسی کے ساتھ مر جاتا ہوں۔ میں مقدر ہوں، میں بازیگر ہوں اور دشمن بھی ہوں۔ اے لوگو، تمہارے ساتھ جنم لیتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی مر جاتا ہوں۔ میں مقدر ہوں، ایک بازیگر۔ ہاں، اسی لیے انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، اس بات سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنی شدت سے چاہنے لگی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں اسے محبت کرنے سے نہیں روکوں گا۔ اسے سمجھاؤں گا کہ بعض وقت میں محبت کی ایک طرفہ بھی ہوتی ہے۔ ہم کسی کو ٹوٹ کر چاہتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں جوابی محبت نہیں ملتی، جیسا کہ تم سے محبت کر رہا ہوں مگر جواباً محبت سے محروم ہوں۔ وہ فوراً ہی اس سے نظریں چرا کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنے جذبوں کا اظہار کرتا جاؤں گا، اپنی طرف سے محبت کرتا رہوں گا۔ تم صلاح نہیں دو گی، ضد نہیں کروں گا۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس سے کترانے لگی۔ اس کے بعد دیکھو پاشا، اگرچہ عینی بے انتہا دولت مند ہے لیکن بہت ہی عجیب ہے، بہت معصوم ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی بد نصیب ہوں، مظلوم ہوں۔ عروج کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تم پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ محبت کا جواب محبت سے نہ ملے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عینی کی محبت کا جواب محبت سے نہ دے کر اس پر ظلم کر رہے ہو۔ یہ تو عینی کی ایک طرفہ محبت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ وہ اس سے نظریں ملا کر بولی، بالکل اسی طرح میں نے بھی تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو۔ پاشا نے گہری سانس لی، پھر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں بھی مجبور ہوں، عینی بھی مجبور ہے اور تم بھی مجبور ہو۔ ہم تینوں ایک ہی دوسرے کو محبت کا صلہ نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ وہ بولی، ہم دونوں چاہیں تو اس کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ قربانی تو میری ہوگی کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی محبت کو خیر بات کہہ کر عینی سے رسمی لگاؤ کا ڈرامہ پلے کرنا ہوگا۔ تم تو مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، پھر تم کیسے قربانی دو گی؟ اس کا ایک ہاتھ میز پر رکھا ہوا تھا۔ عروج نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ شدید حیرت سے، مسرت سے اور بے یقینی سے کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ وہ بولی، پاشا، رسمی طور پر ہی صحیح، مگر پلیز میری عینی سے محبت کرو۔ میں تمہیں اس کی چاہت ملے گی تو ہو سکتا ہے وہ رفتہ رفتہ تمہارے دل میں گھر کر لے۔ وہ اسے بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے مل کر بھی نہیں مل رہی تھی۔ پاشا نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تم کہتی ہو تو میں اس سے دکھاوے کی محبت کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ بولو، تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دو گی۔ پاشا نے میز پر رکھے ہوئے ہاتھ کو سیدھا کیا تو عروج کی ہتھیلی اس کی ہتھیلی پر آ گئی۔ وہ اسے گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر کہا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں تمہیں اپنی عینی کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ تم فضول سی بات کر رہے ہو۔ فضول سی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے کہنے پر عینی سے جھوٹی محبت کرنے لگوں۔ کیا محبت جبراً کرائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو چلو یہی صحیح، تم مجھ سے جبراً محبت کرو۔
वो इसे परेशानी से देखती हुई अपनी जगह से उठ गई। बर्तन समेट कर ले जाते हुए बोली, तुमने मुझे उलझा दिया है। सीधी सी बात है और तुम नहीं मान रहे हो। एक बात का जवाब दो, मैं किस रिश्ते से तुम्हारी बात मानूं? वो रुक गई, पलट कर बोली, जब तुमने मेरे डैडी को अपना खून दिया तो इस वक्त तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं था। इंसानियत के रिश्ते से तुमने ऐसा किया था। बेशक मैं इंसानियत के रिश्ते से बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने जो किया वो मोहब्बत से किया है। घड़ी में वक्त देखो, रात का 1 बजने वाला है। मुझे जवाब दो, मैं इतनी रात गए किस रिश्ते से तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में हूँ? वो बड़े अज़म से बोली, ऐनी के रिश्ते से। मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया था और तुम देख रहे हो कि जब से यहाँ आए हो मैं तुम्हें ऐनी की तरफ मायल करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं ऐनी की तरफ मायल ना हुआ तो क्या तुम मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करोगी? इसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सर झुका लिया। फिर कमरे से निकलकर किचन में आ गई। इसकी हालत अजीब सी थी। वो मना करने के बावजूद बार बार इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किए जा रहा था। जबरन इसके दिल में घुस आ रहा था और इसकी ये ज़बरदस्ती अच्छी लग रही थी। लेकिन जो दिल इसकी तरफ झुकना चाहता था वही दिल ऐनी के लिए भी तड़प रहा था। ये बात जहन में नक्श हो गई थी कि ऐनी को पाशा जैसा जीवन साथी फिर नहीं मिलेगा। ये अच्छा मौका है, इसे किसी न किसी तरह ऐनी की तरफ मायल करना ही होगा। वो बर्तन धोने लगी, जबकि ये ज़रूरी नहीं था। वो ये काम बाद में भी कर सकती थी, लेकिन पाशा के पास जाने पर देर कर रही थी। अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रही थी। ये बात भी दिल में थी कि इसने इसके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया था। इसे मुंह फेर कर चली आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि इसका यूं चले आना इसे बुरा लगा हो। वो जल्दी जल्दी हाथ धोकर कमरे में आई और वो कमरे वजूद से खाली था। इसने फ़ौरन ही कॉरिडोर में आकर बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। इसने जाहिर था कि बताए बगैर जा चुका था। फिर भी वो क्वार्टर से बाहर आकर गली में दूर दूर तक नज़र दौड़ाने लगी, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुक़द्दर संवारने के लिए आया था, मगर इसे संवार कर वो एक बार फिर मायूस होकर चला गया था। वो सर झुकाकर कमरे में आ गई, मोबाइल फ़ोन उठाकर डायल करने लगी। रब्ता होने पर पाशा की आवाज़ सुनाई दी, बोलो। वो बोली, ये क्या हरकत है? तुम मुझसे मिले बगैर आ गए। तुमने मेरी आखिरी बात का जवाब नहीं दिया। वो फिर चली गई। इस तरह मुझे अपनी हैसियत मालूम हो गई। तुम्हारे मिजाज पर गिरा गुजरता हो, तुम सिर्फ ऐनी के लिए मुझे बर्दाश्त करती हो। मैंने ऐसा कब कहा है? तुम्हारी उल्टी अकल समझाया तो तुमने वही समझ लिया। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, औरुज, तुम मेरे मोहब्बत में ऐसे उतर चुकी हो कि अब अकल काम नहीं आती। मैं दिल से सोचने लगा हूँ, जहन से सोचना छोड़ दिया है। ओ गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? दीवानों को लाख समझाओ मगर वो नहीं समझते, इसीलिए पत्थर मारे जाते हैं और तुम मुझे इनकार के पत्थर मार रही हो। वो एकदम से चुप हो गई, फिर बोली, मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकूंगी। ये बातें नहीं, मोहब्बत की सच्चाई। अगर तुम ना मानोगी तो कल फिर मिलूँगा। ये बताओ, तुम्हारी ड्यूटी कब से कब तक है? कल मेरी छुट्टी है। मैं सुबह तक ऐनी के इंतज़ार करती रहूँगी। तुम फ़ोन के ज़रिए रब्ता करो, तुम्हें ऐनी की खैरियत मालूम भी हो जाएगी। ठीक से मुलाकात होगी। ओके, ठीक है, फिर मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़। दोनों तरफ से फ़ोन का रब्ता ख़त्म हो गया, लेकिन दीवार से रास्ते बढ़े जा रहे थे। वो परेशान हो रही थी, आगे लाकर खुद पीछे जाना चाहती थी, मगर दिल था कि आगे की तरफ भाग रहा था। रात के 2 बजे थे,
मैं आईनी की कोठी में था। सब बरामदे में जाग रहे थे, इसलिए कि मैं सोने के साथ रहकर भी जागता रहता हूँ, और कभी ऐसा भी होता है जागने वालों के पास आकर सो जाता हूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरी कोई कुल सीधी नहीं है। फलक आफ्ताब और बेगम आफ्ताब अपने अपने कमरों में मीठी नींद सो रहे थे। डॉक्टर ने आईनी को नींद का इंजेक्शन लगाया, इसके बाद वो सो गई थी। घर वाले इसलिए भी मुतमईन थे। पिछली रात आईनी के गुम हो जाने के बाद जागते रहे थे, और अब इस रात की नींद भी पूरी कर रहे थे। अलबत्ता इसमें जाग रही थी और अपने देवर बाबर को भी जगा रही थी। वो इस वक्त दोनों ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। बाबर ने कहा, भाभी जान, 2 बज चुके हैं और मैं सोना चाहता हूँ। भाईजान सुबह तक नहीं आएंगे तो क्या मुझे सुबह तक जागती रहेंगी? वो मुस्कुराकर बोली, मैं अभी तुम्हें छुट्टी दे दूँगी, तुम जाके सो जाना, मगर पहले ये बताओ शादी कब कर रहे हो? मैंने कहा तो है, जैसे ही कोई लड़की पसंद आएगी शादी कर लूँगा। तुम लड़कियों की तरफ देखोगे तभी कोई पसंद आएगी। तुम तो इनसे ऐसे कतरा कर गुजर जाते हो जैसे वो हमला करने आ रही हो। तुमने तो कभी ऐनी में भी दिलचस्पी नहीं ली। वो मुस्कुरा कर बोला, अरे भाभी, इसके पीछे तो दीवानों की लाइन लगी हुई है। अब वो खुद, खैर ऐनी की बात छोड़ो, अब तो खुद ही पार लग रही है इसका मतलब? वो एक टैक्सी ड्राइवर को छाने लगी है। इसने हैरानी से पूछा, टैक्सी ड्राइवर? हाँ, लेकिन वो तालीम याफ्ता लड़का है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वही ऐनी को जवाब से बचाकर उरूज के पास ले गया था। यानी वो ड्राइवर हीरो बनकर रईसजादी का दिल जीत चुका है। हाँ, मैंने इस जवान को देखा है, वो बहुत ही खूबरू और स्मार्ट है। ऐनी इसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। क्या ये बात मम्मी, डैडी और फूफी जान को मालूम है? हाँ, वो किसी हद तक समझ गए हैं। अब आइंदा पाशा जानी के ख़िलाफ़ महाज आराई हुआ करेगी। वो ज़रा सोचने के अंदाज में बोला, हमारे घर में शतरंज की बिसात बिछी रहती है। तमाम महरे एक दूसरे के सामने तन कर खड़े रहते हैं और एक दूसरे को मात देने के सिलसिले में साजिशें करते रहते हैं। वो हाँ के अंदाज में सर हिलाकर बोली, हम कहाँ ऐनी की बातों में उलझ गए। तुम अपनी शादी की बात करो। मेरी नज़र में 2 लड़कियां हैं, बहुत अच्छी हैं, घर गृहस्थी वाला मिजाज रखती हैं। तुम अभी राज़ी हो जाओ तो मैं रिश्ते की बात चलाती हूँ। भाभी जान, मेरी ज़िंदगी में आने वाली आपकी तेरे बांझ होगी तो क्या होगा? फजूल बातें ना करो। मैंने पहले भी समझाया था, सबके नसीब खोटे नहीं होते। तुम अपनी पहली औलाद को मेरी गोद में रखोगे। वो संजीदगी से बोला, आप अपनी महरूमी देख रही हैं, ये नहीं सोच रही हैं कि मेरे पास आकर एक बच्चे की माँ बनेंगी, क्या वो माँ अपना पहला बच्चा आपको दे सकेगी? मैं इस बच्चे को इससे दूर तो नहीं करूँगी। वो तुम्हारे और इसके सामने ही रहेगा। बस इतना होगा कि वो ज़्यादा वक्त मेरे पास रहा करेगा। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, आप नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहती हैं। आप इस बच्चे को कलेजे से लगाए रखेंगी, इसे अपने साथ सुलाया करेंगी। हाँ, ये मेरा अरमान है। और इस माँ के अरमान कहाँ जाएंगे? वो एकदम से खामोश होकर इसे देखने लगी। वो बोला, देखिए भाभी जान, इस तरह घरेलू झगड़े बढ़ेंगे। ऐसा करते हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी कराई जाएगी, पहले इससे एक तहरीरी माहिदा किया जाएगा कि वो अपना पहला बच्चा आपकी गोद में डाल दे। अगर वो राज़ी हो गई तो मैं इससे शादी करूँगा। इसमें सोच में पड़ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गई? वो इनकार में सर हिला कर बोली, कोई भी लड़की शादी से पहले ऐसा मायदा नहीं करेगी।
اس کے والدین بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ عقل کی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ ذرا خفگی سے بولی، تم بہت خوش ہو رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ تمہیں میری گود میں ایک بچہ دینے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ آپ حکم دیں، میں کسی کا بھی بچہ چرا کر لے آتا ہوں۔ فضول باتیں نہ کرو، اس طرح تو ہم یتیم خانے سے بھی بچہ لا سکتے ہیں، مگر وہ اس خاندان کا لہو نہیں ہوگا، اسی لیے تو مجھے تمہاری خوشامد کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ میرے راستے میں کیلے کا چھلکا پھینک رہی ہیں، میں کسی بھی وقت پھسلنے والا ہوں۔ وہ ذرا سوچنے کے بعد بولی، ایک ترکیب ہے۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، کسی ایسی غریب اور مجبور لڑکی سے شادی کرو جو تمہارے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لے۔ کیا اب آپ کسی غریب اور مجبور لڑکی کو ڈھونڈنے نکلیں گی؟ میں اس خاندان کا ایک وارث لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ماں باپ میرے لیے سوگن لے آئیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، یہ تو میں کہہ چکا ہوں، مجھے کیلے کے چھلکے پر پھسلنا ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا مقدر میرے ساتھ کیا گل کھلائے گا۔ وہ سر جھکا کر سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ بابر تھوڑی دیر تک اسے اپنی محبت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، بھائی جان پتہ نہیں کیوں میں اپنی ممی سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، اس خاندان میں وارث لانے کا کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ عینی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، مجھے منظور نہیں تھا۔ سکوت اور خاموشی موت کی نشانی ہے۔ دفتن فوقتاً ہلچل پیدا ہوتی رہے تو زندگی کے چہرے پر رونق آتی رہتی ہے۔ میں نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا، پھر سوچنے لگی، وہ کہاں ہے؟ اسے یاد آ رہا ہے زینے کی بلندی سے گر پڑی تھی، اس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو چھو کر دیکھا تو پیشانی کے خطاب ایک پٹی چپکی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی، جسم میں جگہ جگہ درد کے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ آنکھ کھول کر لیٹ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ اپنی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ نظر آ رہا تھا کہ عروج نے اس کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، ہاسپٹل کے کوارٹر میں رہنے کے لیے گئی ہے۔ یہ خیال وہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک خود کو سنبھالتی رہی، پھر آہستہ آہستہ دروازے کے پاس آئی، اسے کھول کر وہاں لگی ہوئی بالکونی کے ریلنگ کے پاس آ گئی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں دھیمی دھیمی روشنی تھی، وہاں اسما اور بابر دھندلے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ریلنگ کے سہارے چلتی ہوئی زینے کے پاس، پھر ایک پائیدان پر قدم جماتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ نصف زینہ طے کرنے کے بعد وہ کمزوری کے باعث اس نے اسما کو پکارا، بھائی جان۔ اسما اور بابر نے چونک کر زینے کی طرف ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر زینے کی طرف آئے۔ اسما نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ انٹرکام کے ذریعے مجھے بلا لیتی، میرے لیے گاڑی نکالیں۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ بابر نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ اس وقت جاؤ گی؟ عروج وہاں اکیلی ہے۔ اسما نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایسی نادانی کی باتیں نہ کرو، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ پھر تمہیں یاد نہیں کہ اخلاق انکل نے کیا کہا ہے، گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی؟ وہ الجھ کر بولی، وہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں جاؤں گی اور ابھی جاؤں گی۔ اسما نے کہا، بس ابھی 2-3 گھنٹے میں صبح ہونے والی ہے۔ عروج کو یہیں بلا لیں گے۔ کیا آپ نے میرے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں بتایا تھا، ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح پاگل ہے۔ تمہاری حالت کا سنتے ہی آدھی رات کو دوڑی چلی آتی۔
हमने इसलिए अभी कुछ नहीं बताया। वो इत्मीनान के साथ लेते हुए बोली, मैं जानती थी मेरे बारे में पता नहीं है, वरना वो दौड़ी चली आती, लेकिन मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी। वो ये कहकर खड़ी हो गई, रेलिंग के सहारे एक एक पायदान पर कदम रखते हुए नीचे उतरने लगी। इस्मा ने इसे शानों से थाम कर कहा, क्या कर रही हो? आईनी, मेरी बात मान लो, देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, मगर आपकी बात मानकर उरूज को नहीं भूल सकती। वो इस वक्त तना है और मेरी वजह से तना है, प्लीज़ मुझे ना रोके। वो उतरती जा रही थी और बोलती जा रही थी। इस्मा इसके साथ साथ चलते हुए बोली, अच्छा चलो, वहाँ सोफ़े पर आराम से बैठो, अभी तुम्हारे भाईजान आएंगे, तुम इनके साथ उरूज के पास चली जाना, फिर इसे यहाँ बुला लेना। नहीं भाभी जान, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि वो तन्हा क्वार्टर में रात गुजारे, और वो भी मेरी वजह से। वो इस्मा के सहारे चलती हुई सोफ़ों के दरमियान आई। बाबर ने बैठने के लिए कहा तो इनकार में सर हिला कर बोली, नहीं, दरवाजे की तरफ चलें, ड्राइवर को बुलाएं। बाबर ने झिंझला कर कहा, आईनी, पागल हुई हो क्या? जानती हो वकील अंकल ने कितने सख्त इंतजाम किए हैं? सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। इसका मतलब यह है कि मैं अपने घर में कैदी बनकर रहूँगी। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत और जायदाद, मुझे नहीं चाहिए ये वसीयत की पाबंदी। मैं अपने पापा की वसीयत और जायदाद से इनकार करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उरूज चाहिए। वो आगे बढ़ने लगी तो बाबर ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, ज़रा देर के लिए रुक जाओ, हम अभी उरूज को फ़ोन करते हैं, तुम इससे बात करो, ये तय करो कि तुम वहाँ जाओगी, वो यहाँ आएगी। इसने ख़ायल होकर बाबर को देखा। इस्मा ने इसे एक सोफ़े पर बिठा दिया। बाबर ईश्वर को कान से लगाकर बोला, उरूज के नंबर बताओ। इसके कुछ कहने से पहले ही दरवाज़ा खुला। इन तीनों ने इस तरफ देखा। खुले हुए दरवाजे से ज़ीशान अंदर आ रहा था। इस्मा फ़ौरन ही उठकर इसके तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छे वक्त पर आए। आईनी ने तो परेशान कर दिया है, ये इतनी रात को उरूज के पास जाने की ज़िद कर रही है। ज़ीशान ने आईनी के करीब आकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम उरूज से मिलने के लिए बेचैन हो रही हो, हम तुम्हारी बेचैनी समझ सकते हैं, मगर ये ज़िद नहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। क्यों अपनी जान से दुश्मनी कर रही हो? तुम सुबह इससे मिल सकती हो। नहीं भाईजान, आप नहीं जानते, इसने मेरे खातिर अपने माँ बाप से झगड़ा किया है और अपना घर छोड़ दिया है। क्या मैं ऐसी हालत में इसे तना रहने दूंगी? वो इसके करीब बैठते हुए बोला, बेशक इसे तना नहीं रहना चाहिए। मैं अभी फ़ोन पर इससे बात करता हूँ और अभी इसे यहाँ बुलाता हूँ। बाबा रिसीवर लिए खड़ा हुआ था, फिर बोला, उरूज नंबर बताओ। वो नंबर बताने लगी और वो डायल करने लगा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से बेल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बाबर ने रिसीवर आईनी की तरफ बढ़ा दिया। वो इसे कान से लगाकर इंतज़ार करने लगी। फिर उरूज की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं उरूज बोल रही हूँ। वो बोली, मैं आईनी हूँ, क्या अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं है? कैसे सोती? पाशा ने बताया था कि तुम सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी हो गई है, डॉक्टर ने तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगाया है और तो अब सो रही है। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी जान, मुझे जहर भी खिलाया जाता तो मैं मौत की नींद नहीं सोती। मुझे तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती हूँ। वो तीनों इसकी बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ से उरूज ने कहा, तूने ये क्या हिमाकत की थी? क्या पिस्तौल को खिलौना समझ लिया है? वो ज़ीशान को देखते हुए बोली, तेरे पास आने से मुझे रोका जाएगा तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगी। इस वक्त सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, इसलिए तेरे पास आने की बात टल गई थी, मगर अब नहीं टलेगी। मैं अभी आऊँगी, ऐसी हिमाकत ना करना। क्या तू इस वक्त अकेली है? नहीं, यहाँ भाईजान मेरे पास बैठे हैं, इसमें भाईजान और बाबर भी हैं। रिसुर ज़ीशान भाई को दे।
आईनी ने रिसीवर ज़ीशान की तरफ बढ़ा दिया। वो इसे कान से लगा कर बोला, हेलो उरुज। वो बोली, भाईजान आप जानते हैं वो कैसी सरफिरी है, यहाँ आने से बात नहीं आएगी, इसलिए मुनासिब है कि मैं वहाँ चली आऊँ। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को तन्हा नहीं आओगी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ऐनी ने मदाखलत की, भाईजान इससे पूछें इसने रात का खाना खाया है या नहीं। ज़ीशान ने कहा, ओ यहाँ आएगी तो पूछती रहना। फिर इसने फ़ोन पर उरुज से कहा, ठीक है मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये कहकर इसने रिसीवर रख दिया। इस्मा ने कहा, आप अभी ऑफिस से थक कर आए हैं, बेहतर होगा आपकी जगह बाबर चला जाए। वो बोला, नहीं मैं सिपाहियों के साथ आया हूँ, इन्हीं के साथ जाकर उरुज को ले आऊँगा। फिर उड़ते हुए बोला, ऐनी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो। यहाँ से उठकर अपने कमरे में जाओ और आराम से लेट जाओ। इस्मा ने ऐनी का हाथ थाम कर कहा, चलो उठो। उठकर इस्मा के साथ जाने लगी। ज़ीशान इसे जीने पर बढ़ते हुए और इसे अपने कमरे तक जाते हुए देखता रहा। फिर मुतमईन होकर वहाँ से बाहर आ गया। बाहर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा मुसल्लह सिपाही भी खड़े हुए थे। इसने अपनी कार में बैठते हुए सिपाहियों से कहा, मेरे पीछे आओ। सिपाही फ़ौरन ही हुक्म की तामील करते हुए इसकी कार के पीछे एक गाड़ी में जाने लगे। वो कार ड्राइवर करता हुआ मेन रोड पर आ गया। ऐसे वक्त फ़ोन का बजर सुनाई दिया। इसने इसे कान से लगाकर कहा, हेलो एसपी ज़ीशान। या दूसरी तरफ से इसके आला अफसर आईजी की तरफ आवाज़ सुनाई दी, ज़ीशान तुमने जवाद हाशमी को रिहा कर दिया था। और मुस्तैद से बोला, यस सर, मैंने आपके हुक्म की तामील की है, लेकिन वो अभी तक शहबाज दुर्रानी के पास नहीं है। सर ये शहबाज दुर्रानी कौन है? हमारे मुल्क में बेशुमार असर वसर रखने वाले हैं, ये इन्हीं बड़े लोगों में से एक है। क्या तुमने इसके सिलसिले में जवाब से कोई तहरीर ली थी? सर मैं पक्का काम करता हूँ। इसकी तहरीरी का कागज़ सिर्फ इसके दस्तखत हैं, बल्कि जो 4 ऑफिसर इसे लेने के लिए आए थे, मैंने इन कागज़ात पर इनके दस्तखत भी लिए हैं। इसके बाद इसे इनके हवाले किया था। इनमें से एक किसी से फ़ोन पर रब्ता करके कहा था जवाद को रिहाई मिल गई है, वो इसे लेकर आ रहे हैं। आईजी ने मुतमईन होकर कहा, फिर तो ठीक है। अब वो अपने घर तक नहीं पहुंचा है तो इसके ड्रामेदार हम नहीं हैं। इस कमबख्त ने तुम्हारी बहन को अगवा करके कोशिश की थी, इसके बावजूद तुमने मेरे हुक्म की तामील से अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हो। ओके गुड नाइट। राब्ता ख़त्म हो गया। ज़ीशान एक हाथ से स्टीयरिंग तो ड्राइविंग कर रहा था। इसने मोबाइल को ऑफ़ करते हुए नागवारी से सोचा, ओ मेरी बहन को अगवा करने की खैरियत से घर पहुंच जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी माँ बेटे को आटे दाल का भाव मालूम होता रहेगा। शहबाज दुर्रानी की पहुंच ऊपर तक थी और वो वहां तक जाकर ये कह चुका था कि 1 घंटे के अंदर जवाद हाशमी को रिहा करके मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। इसे यकीन दिला दिया गया था कि ऐसा ही होगा और फिर इसे यकीन दिलाया था कि ऐसा ही होगा और फिर 1 घंटे के अंदर ही इसके 4 आदमी जवाद हाशमी को लेने के लिए ज़ीशान के दफ्तर पहुंच गए थे। वहां से एक आदमी ने फ़ोन के ज़रिए शहबाज को बता दिया था कि वो जवाद को रिहाई मिल चुकी है और वो इसे लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम मुक़द्दर है। मैं जिस इंसान के साथ पैदा होता हूँ इसी के साथ मर जाता हूँ। मैं मुक़द्दर हूँ, मैं बाज़ीगर हूँ और दुश्मन भी हूँ। ऐ लोगों, तुम्हारे साथ जन्म लेता हूँ, तुम्हारे साथ ही मर जाता हूँ। मैं मुक़द्दर हूँ, एक बाज़ीगर। यहाँ एपिसोड 22 ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुक़द्दर देखने का। जारी है, आगे देखते रहिए, सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज़।